اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو another برانڈ نیو بلاگ۔ آج میں آپ لوگوں کو وزٹ کراؤں گا ممتاز سٹی۔ کافی عرصہ پہلے میں نے کروایا تھا، ابھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ادھر کیا پوزیشن ہے، کیا حالات ہیں، کون کون سے سائزز ہیں پلاٹس کے، اور کتنے کلومیٹرز آلموسٹ یہ بنتا ہے G13 کے انٹرچینج سے، کیونکہ ابھی ہم لوگ G13 کے انٹرچینج کے بالکل قریب ہی ہیں، قریب کیا کہ بالکل اس کے اوپر سے ہی گزر رہے ہیں۔ اور ابھی ہمارا جو رخ ہوگا وہ نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اسلام آباد کا، اس کی طرف ہمارا رخ ہوگا، اور ہم لوگ جائیں گے ممتاز سٹی کے اندر انٹر ہوں گے۔ تھوڑا سا راستہ بھی آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا، کیونکہ بعض لوگ اوورسیز ہوتے ہیں یا آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں تو ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کہاں سے کیسے جانا ہوتا ہے، تو اس لیے میں یہ راستہ وغیرہ بھی دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ پر بعض لوگ جو ادھر لوکل رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اعتراض ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو ایسا کریں کہ سوات سے، اگر کوئی سوات میں بیٹھا ہے تو بولتا ہے سوات سے شروع کر دو، کوئی کہتا ہے مانسیرا سے شروع کر دو۔ بہرحال چلیں، کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو بناؤں، ایک ٹاپک ہٹ جاتا ہے۔ چلیں تو ابھی چلیں گے، میں سارا راستہ، اس کی پرائسز، اور ادھر دیکھیں گے کہ انسٹالمنٹ پہ اگر کوئی بلڈنگ وغیرہ بن رہی ہے تو میں کوشش کروں گا اس کی بھی ڈیٹیلز آپ لوگوں کو دے دوں۔ ویڈیو کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا، انسٹالمنٹ کی چیزیں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے میں مینیج کروں اور آپ لوگوں کو باقاعدہ اس کی تفصیل دوں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ F10 یا F11 میں انسٹالمنٹ کے اوپر اپارٹمنٹس ہیں، ہوتے وہ تھوڑے مہنگے ہیں پر زبردست اپرچونٹیز ہمارے پاس ہیں۔ اگر آپ لوگ اس میں بکنگ وغیرہ کروانا چاہ رہے ہو، ایک اچھے آپشن، مطلب ہے 4 سال 3 سال 2 سال کی انسٹالمنٹ پہ آپ کو اپارٹمنٹس مل سکتے ہیں۔ F10 ہو گیا، نیو بلو ایریا ہو گیا، اس میں آفیسز، شاپس وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایک مطلب اچھی انویسٹمنٹ ہے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں بھی اگر کوئی کوئریز ہو تو اس کے لیے آپ نے کال کرنی ہے۔ آفس ٹائمنگ کو ملوز خاطر رکھیں گے، اور یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ بھی آپ میسج کر سکتے ہیں اور کمنٹس میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ابھی ممتاز سٹی کی طرف، ادھر کا تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں، پھر میں آپ لوگوں کو پوری ادھر جو انسٹالمنٹ کی اپارٹمنٹس ہیں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ تو چلیں اب چلتے ہیں ممتاز سٹی۔ اچھا جی، ابھی ہم لوگ یہ کشمیر ہائی وے کے اوپر ہے اور ایئرپورٹ کی طرف رخ ہے ہمارا۔ رائٹ سائڈ پہ ہمارے G14 سیکٹر ہے، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا یہ سیکٹر ہے، اور تھوڑا سا ہم لوگ آگے کر کے جائیں گے تو لیفٹ پہ ایک راستہ آپ کو جی ٹی روڈ کی طرف، جو پنڈی صدر اور ویسٹ ریج کے ایریا کی طرف آپ لوگوں کو لے کے جائے گا۔ ہم لوگوں نے اسٹریٹ جانا ہے کشمیر ہائی وے کے اوپر، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا، تاکہ اگر آپ لوگ راستہ سمجھنا چاہ رہے ہو، اگر نہیں سمجھنا چاہ رہے تو بے شک آپ ویڈیو سکپ کر کے تھوڑا سا آگے کر کے پھر اس کو فردر دیکھیں۔ یہ جو میٹرو اسٹیشن آ گیا تو یہ اس کو N5 کا میٹرو اسٹیشن بولتے ہیں۔ ادھر سے اورنج بسز وغیرہ اسلام آباد جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کی طرف جاتی ہیں۔ ہم لوگوں نے ابھی اسٹریٹ جانا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اچھا جی، یہ سامنے جو آپ کو برج نظر آ رہا ہے تو یہ جی ٹی روڈ کا برج ہے، اور جیسے یہ برج کراس کرتے ہیں تو ایک ایگزٹ آتا ہے ادھر لیفٹ سائڈ پہ۔ یہ آپ کو اس جگہ سے اگر آپ لوگ ایگزٹ ہوں گے تو آپ ٹو ورڈز ٹیکسلا آپ کہہ سکتے ہیں، پشاور بھی اگر آپ لوگوں نے جانا ہے، حسن عبدال اگر جانا ہے تو اس سائڈ پہ آپ کو یہ ایگزٹ لے جائے گا۔ ہم لوگ ابھی اسٹریٹ ہی جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے جانا ہے ممتاز سٹی کی طرف۔ راستے میں اور کیا کیا چیزیں پڑتی ہیں اس کے حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ اچھا جی، ابھی ہم لوگ پہنچ گئے، یہ موٹر وے چوک سا آ گیا ہے۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے جو راستہ جا رہا ہے لاہور M2 کی طرف جا رہا ہے، اور ہم لوگوں نے سلائٹلی گاڑی کو رائٹ رکھنا ہے۔ تو ادھر سے جیسے ہی ہم لوگ یہ برج کے نیچے سے کراس ہوں گے تو پھر دوبارہ ہم لوگوں نے سلائٹلی رائٹ ہی جانا ہے، کیونکہ جو سامنے سیدھا راستہ جا رہا ہے تو یہ پشاور M1 کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف ہی اپنا رخ رکھنا ہے۔ میں بھی دھوپ کی وجہ سے آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے میں تھوڑی سی دشواری ہو، بہرحال آپ لوگوں نے تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا ہے۔ یہ رائٹ سائڈ پہ جو بلڈنگز وغیرہ دیکھ رہی ہیں
ये टावर्स जो बनते हुए दिख रहे हैं, तो ये मुमताज सिटी के टावर्स हैं, मुमताज सिटी की प्रेमिसेस में आते हैं। और ये लेफ्ट साइड पे ये जो बिल्डिंग आप लोगों को दिख रही है, तो ये टॉप सिटी के अंदर बन रही है, वो रोहताना के नाम से होटल बन रहा है। तो ये इसका एरिया है, और स्ट्रेट रोड इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम लोगों ने इधर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो टॉप सिटी की तरफ हम लोगों ने एग्जिट होना है, और फिर एक गोल सा चक्कर लेके तो हम लोग मुमताज सिटी के अंदर बाकायदा एंटर हो जाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को रास्ता, आप लोगों ने वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी। ये अब थोड़ा सा ये लेफ्ट की तरफ एक रास्ता जा रहा है, ये अगर आप लोगों ने एंटर होना है टॉप सिटी के अंदर। ये सामने जो आपको बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं, तो ये टॉप सिटी की बिल्डिंग्स हैं, सारे कमर्शियल्स वगैरह। और इधर से अभी हम लोग एग्जिट होते हैं, तो हम लोग बाकायदा तौर पे टॉप सिटी के अंदर एंटर हो जाएंगे। टॉप सिटी के जो जो ब्लॉक्स हैं उसका भी मैं थोड़ा सा विजिट करवाता हूं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और भी सोसाइटी है, तो थोड़ा सा उसका भी मैं आप लोगों को विजिट करवाऊंगा, जिसको गंधारा सिटी बोलते हैं। तो उसका भी मैं आपको इसके साथ ही विजिट करवा दूंगा, तो दोनों के बारे में फिर प्राइसेस और सारी डिस्कशन हम एट द एंड ऑफ द वीडियो करेंगे। अब ये बाकायदा तौर पे आप समझो कि हम लोग मुमताज सिटी के अंदर एंटर हो गए हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीजें ये मेन पे। अब ये दाएं बाएं जो आपको कमर्शियल्स वगैरह दिख रहे हैं, तो ये सारे मुमताज सिटी की प्रेमिसेस में आते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, और पहले रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं 5 मरला और 6 मरला 8 मरला, उनके एरिया में जाते हैं, जिसको रावी ब्लॉक बोलते हैं और चिनाब ब्लॉक बोलते हैं। उसमें छोटे प्लॉट्स हैं, और फिर 2 ब्लॉक्स और हैं, उसके अंदर आप लोगों को लेके जाऊंगा। उसमें फार्म हाउस के प्लॉट्स भी हैं। तो अगर आप लोगों का कोई फार्म हाउस का प्लॉट है, आप सेल करना चाह रहे हो या परचेज करना चाह रहे हो, तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं। तो इधर से अभी हम लोग लेफ्ट एंटर होते हैं, और ये सामने जो आपको घर वगैरह बने हुए दिख रहे हैं, तो ये हैं चिनाब ब्लॉक के। और हमारे लेफ्ट साइड पे ये जो कमर्शियल दिख रहा है, तो ये रावी ब्लॉक, आप ऑलमोस्ट इसको समझ सकते हो। तो अभी इधर से हम लोग ये बैरियर क्रॉस करेंगे, और फिर देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सिक्योरिटी वाइज इन्होंने अभी थोड़ा सा इसको सिक्योरिटी को टाइट रखा हुआ है, क्योंकि बैरियर्स वगैरह लगा दिए हैं। क्योंकि जिस रोड से अभी हम लोग आए हैं, तो ये रोड आपको सीधा ले जाएगी और कनेक्ट करेगी फतेह जंग रोड के साथ। तो ये इसका सारा कमर्शियल एरिया है। अगर कमर्शियल में इंस्टॉलमेंट पे आप लोगों को कोई चीज चाहिए, मैं एक दो चीजों के बारे में डिस्कस भी करूंगा आप लोगों के साथ, तफसील के सारी तफसीलात दूंगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रीट विजिट करवा दूं ये रावी ब्लॉक के। ये जो सामने घर आपको दिख रहे हैं, ये 30x70 के साइज के प्लॉट्स हैं। तो ये एक अच्छी लोकेशन के और अच्छी टॉप ऑफ द लाइन लोकेशन है इसकी। थोड़ा सा अभी मैं लेफ्ट की तरफ आप लोगों को लेके जाऊंगा रावी ब्लॉक के अंदर। इसके अंदर 5 मरला जैसे कि मैंने बताया, और 6 मरला भी है, 30-50 उनको कहते हैं 6 या 6.5 मरला आप कह सकते हो। और उसके बाद 30x60 जो 8 मरला जिसको आप कह सकते हो। तो थोड़ा सा अब इधर से एंटर होते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है स्ट्रीट्स की। ये अभी हम अंदर की तरफ आ गए। इधर एक मिनी मार्केट भी है इसके अंदर। एक मेन इसका कमर्शियल वो रोड के दाएं बाएं जो आप लोगों को दिख रहा था, और ये लेफ्ट साइड पे कंस्ट्रक्शन वगैरह काफी मतलब चल रही है तेजी से। और देखेंगे इसमें कि बिजली और पानी तो अवेलेबल है, अंडरग्राउंड है, सीवरेज लाइंस इसकी अंडरग्राउंड है।
ये इसका एक छोटा सा कमर्शियल बना हुआ है, स्टोर वगैरह भी इसमें बना हुआ है, पार्क्स वगैरह बन चुके हैं, काफी चीजें बन चुकी हैं अभी इस सोसाइटी के अंदर। ये गैस के मीटर वगैरह भी लग चुके हैं घरों के ऊपर, तो मैं यकीनन इसमें गैस अवेलेबल है। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये घर के ऊपर मीटर लगा हुआ है। थोड़ा सा अभी हम लोग मजीद अंदर ये स्ट्रीट का विजिट करेंगे कि गलियों की क्या सूरत हाल है, गलियां अच्छी बनी हुई है या नहीं। गलियां ठीक है, ये देखें घर पे 2 गैस के मीटर लगे हुए हैं, तो गैस वगैरह, बिजली वगैरह, पानी वगैरह सर्विसेज इधर अवेलेबल हैं। इस स्ट्रीट में जो ये घर बने हुए हैं, तो ये 30x60 8 मरला के हैं। अब इधर से थोड़ा सा मजीद हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे कि ये स्ट्रीट्स की क्या पोजीशन है। स्ट्रीट्स बस ठीक है, बहुत अच्छी आप नहीं कह सकते, जैसा कि टॉप सिटी की गलियां वगैरह अच्छी बनी हुई हैं। इसमें थोड़ा सा बस ये है कि खैर टॉप सिटी के अंदर अब डेवलपमेंट काफी हो चुकी है, तो उस वजह से उसकी स्ट्रीट्स उन्होंने दोबारा मतलब रिफ्रेश आप समझो के कर दी हैं। तो ये इसके अंदर के स्ट्रीट के हाल अहवाल है। वाटर टैंक्स वगैरह आपको ये सामने दिख रहा होगा, वाटर टैंक। और घरों पे कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से चल रही है। तो इसकी प्राइसेस के हवाले से भी बताऊंगा, और एक अच्छी सोसाइटी है, मतलब इसके एनओसीज वगैरह ये सारी चीजें क्लियर हैं। और इसमें अगर आप प्लॉट ट्रांसफर कराओगे तो आपको सोसाइटी की तरफ से ट्रांसफर लेटर भी मिलेगा, और प्लस उसके अंदर आपको रजिस्ट्री भी मिलेगी, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। और ये जो सोसाइटी है, ये मैं आपको बताता जाऊं थोड़ा सा क्लियरली कि आरडीए के अंदर आती है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रावलपिंडी के अंदर आए या इस्लामाबाद के अंदर आए, क्योंकि बाय लॉज के मुताबिक अगर अप्रूव्ड सोसाइटी होती है, एलओपी वगैरह, एनओसी वगैरह सारी चीजें क्लियर होती हैं, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। अभी हम थोड़ा सा ये चिनाब ब्लॉक के अंदर मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा और इसका भी स्ट्रीट रिव्यू करवा देता हूँ। चिनाब ब्लॉक के अंदर मुझे घर ज्यादा बने हुए दिख रहे हैं। इसके अंदर भी आपको 8 मरला और 5 मरला के प्लॉट मिलेंगे। ये स्टार्ट में आपको ये सारे जो घर वगैरह दिख रहे हैं, तो ये 8 मरला के हैं। थोड़ा सा एंड में जाके अब इसकी स्ट्रीट कदरे बेहतर है चिनाब ब्लॉक की, और ये थोड़ा सा मुझे हाइटेड एरिया भी लगा है चिनाब ब्लॉक जो है। अच्छे घर बने हुए, मतलब नॉट बैड इसमें लोगों की लिविंग, क्योंकि ये शुरू में काफी सस्ते प्लॉट्स थे। अभी तो प्राइसेस इकॉनमी की वजह से थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ गई हैं प्रॉपर्टी वगैरह की, तो उस वजह से प्राइसेस थोड़ी सी इसकी बढ़ गई हैं, वरना काफी रीजनेबल ये प्लॉट्स हुआ करते थे। और वो सामने जो आपको विलाज वगैरह बने हुए दिख रहे हैं, तो इसमें भी अगर आप लोग विला लेना चाहो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ये फिल्टर प्लांट बना हुआ है इधर बाकायदा तौर पे सोसाइटी की तरफ से। वो सामने आपको अक्रॉस द रोड ये पार्क एक बना हुआ है खूबसूरत, बच्चे वगैरह उसमें खेल रहे हैं, तो अच्छा एक ऑप्शन है। और मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि G13 से ये कितने किलोमीटर बनता है, तो ऑलमोस्ट ये 13 किलोमीटर बनता है G13 के इंटरचेंज से। अच्छा, इस सेक्टर, इस सोसाइटी में अगर आप लोगों को 8 मरले का प्लॉट करोड़ या 1.25 करोड़ रुपए में मिल रहा है, तो G13 के अंदर आपको 5 मरले का जो प्लॉट है, तो वो ऑलमोस्ट मिलेगा 2.5 करोड़ रुपए का। तो मेरे ख्याल से 13 किलोमीटर के फासले पे बिजली, पानी, गैस की सहूलियात जहां आपको मिल सकती हैं, और उसमें आपको प्लॉट का इतना बड़ा डिफरेंस मिले, तो मेरे ख्याल से रीजनेबल है अभी भी प्राइसेस। क्योंकि 13 किलोमीटर अगर सिग्नल फ्री रोड है, तो आप ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 से 12 मिनट के अंदर आप इस सोसाइटी में होंगे G13 से इधर तक।
तो एक अच्छा ऑप्शन है ये। अब इसके बड़े प्लॉट्स हैं 500 गज के। ये अब किसी ने 2 प्लॉट इकट्ठे लिए हुए हैं, एक प्लॉट पे उसने कोई लॉन वगैरह बना दिया, एक पे घर बना दिया। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा फार्म हाउसेस की तरफ, उधर देखते हैं कि उधर की क्या सिचुएशन है, फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे। फिर मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा गंधारा जो सोसाइटी है, गंधारा सिटी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ। अच्छा जी, अभी हम लोग आ गए ये इंडस ब्लॉक की तरफ। ये इधर आपके बड़े प्लॉट्स आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को लेके जाऊं स्ट्रेट कम उसकी तरफ जाते हैं। कमर्शियल्स ये इसके राइट साइड पे हैं, और फिर उसके बाद फार्म हाउसेस की तरफ आप लोगों को लेके जाता हूं। तो इधर कनाल के प्लॉट्स भी हैं, मस्जिद बनी हुई है इधर ये खूबसूरत सी एक, और आगे फार्म हाउसेस में देखते हैं कि क्या है, कौन कौन से साइजेस हैं, उसके हवाले से भी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहरहाल थोड़ा सा हम लोग इधर से लेफ्ट एंटर हो जाए, स्ट्रीट नंबर 4 एग्जेक्टिव इनक्लेव। ये मस्जिद आप लोगों को दिख रही होगी, और ये आपको आप समझें कि क्रिकेट ग्राउंड, पार्क टाइप या क्रिकेट ग्राउंड भी बने हुए, फ्लड लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं इसमें। ये आपके बड़े घर बन रहे हैं, कोई विलास टाइप बन रहे हैं कनाल कनाल के। और ये सामने आपको एक मस्जिद दिख रही होगी। तो मसाजिद वगैरह पे भी काम चल रहा है अभी। इधर से मजीद अब हम लोग थोड़ा सा फार्म हाउसेस की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये फार्म हाउसेस का एरिया था। अभी थोड़ा हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, और इंडस ब्लॉक था, एग्जेक्टिव ब्लॉक में इस टाइम हम लोग फिर रहे हैं। ये मस्जिद और मदरसा वगैरह बन रहा है। ये अब किसी ने अच्छा सा खूबसूरत सा घर बनाया हुआ है। सोलर वगैरह ऊपर लगा के बैठे हुए हैं ये लोग। तो चलें, अब चलते हैं थोड़ा सा गंधारा सिटी की तरफ, और फिर तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट्स वगैरह हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और बाकी जो प्लॉट्स वगैरह हैं कैश पेमेंट पे, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, बार बार मैं कह रहा हूँ, वरना अपना नुकसान उठाएंगे आप लोग। अच्छा जी, ये अभी हम लोग समझे कि मुमताज सिटी की एंडिंग हो गई है इधर। ये बोर्ड आपको दिख रहा है, और हमारी जो फेसिंग है इस टाइम, ये रोड अगर आप लोग इसके ऊपर से स्ट्रेट जाते हैं तो आप फतेह जंग रोड को कनेक्ट कर लेंगे। तो ये सामने जो आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, तो ये एयरपोर्ट इनक्लेव की हैं। इधर से हम लोगों ने अभी लेफ्ट एंटर होना है, और गंधारा सिटी के अंदर हम लोग चले जाएंगे। ये लेफ्ट साइड पे जो आप लोगों को घर वगैरह दिख रहे हैं, तो ये मुमताज सिटी के अंदर आ रहे हैं। तो अभी एंट्री करते हैं गंधारा सिटी के अंदर, और देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। और प्लॉट्स जो हैं इधर कुछ मुनासिब हैं मुमताज सिटी की बनिस्बत। और ये गंधारा सिटी जो है ये बिल्कुल गेटेड कम्युनिटी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसका गेट लगा हुआ है चारों तरफ। तो अभी हम लोग एंटर होंगे गंधारा सिटी के, और देखते हैं कि क्या चीज है और क्या नहीं है। ये इसकी वॉल पे खूबसूरत एक गंधारा तहजीब की स्टाइल का वो बना हुआ है। और ये अभी हम लोग बाकायदा एंटर हो गए हैं। ये खूबसूरत, मतलब इधर पार्क वगैरह बनाया हुआ है इन्होंने। ये वॉल पे अच्छा सा काम किया हुआ है। तो ये भी एक अच्छी गेटेड कम्युनिटी है, और छोटी सी सोसाइटी है। इसमें ज्यादा मेरे ख्याल से रफली अगर मैं कह सकूं, कोई 400 के करीब इस तरह के प्लॉट्स वगैरह इसके अंदर होंगे।
तो थोड़ा सा मैं भी इसमें आप लोगों को अंदर विजिट करवाता हूँ, घरों की स्ट्रीट्स की सूरत हाल आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या पोजीशन है। ये इनका ट्रांसफर ऑफिस, मेंटेनेंस ऑफिस, आप जो भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें भी काफी घर वगैरह बन चुके हैं, लोगों की रिहाइशें वगैरह आ चुकी हैं। इसके अंदर आपको गैस अभी नहीं मिलेगी, बिजली का भी शायद इनका भी कोई इंडिपेंडेंट मीटर वाला कोई वो सीन मुझे नहीं लगता। बहरहाल देखते हैं, इसके बारे में कंफर्म करते हैं कि क्या सिचुएशन है। स्ट्रीट्स वगैरह अच्छी हैं इसमें भी, मतलब काफी एक सेफ और सिक्योर सोसाइटी मुझे लग रही है। इसमें गैस वाला कोई सीन मुझे नजर नहीं आया, किसी घर के ऊपर गैस का मीटर मुझे नहीं दिखा। बहरहाल पानी का इसमें सच कोई इशू नहीं है। अगर लाइक सपोज आपको कोई प्रॉब्लम होती भी है पानी में, तो सोसाइटी आपको पानी की सर्विस प्रोवाइड करेगी। ये एक मस्जिद वगैरह, मस्जिद भी इसमें तामीर हो रही है। ये मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को अंदर की स्ट्रीट्स का भी विजिट करवा दूं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि किस किस्म की स्ट्रीट्स बनी हुई है। स्ट्रीट्स इतनी मतलब अंदर जो है मेन रोड अच्छी थी, बाकी अंदर की स्ट्रीट्स, और ये स्ट्रीट्स मुझे कोई 30 फुट की गलियां लग रही हैं इधर, क्योंकि इतनी चौड़ी स्ट्रीट्स हैं नहीं। नजर आ रहा है ये मैक्सिमम 30 फीट की चौड़ाई की स्ट्रीट्स होंगी। बहरहाल छोटी सी एक कम्युनिटी है, तो उसमें ऐसा कोई है मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होगा गली तंग होने की वजह से। अंडरग्राउंड बिजली है इधर भी, और अंडरग्राउंड ही आपको सीवरेज लाइंस वगैरह मिल जाएंगी। ये स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। पार्क इसमें मुझे नजर नहीं आया, वो स्टार्ट में एक छोटा सा पार्क बना हुआ था, बस वही मुझे नजर आया। तो ये सूरत हाल है इस सोसाइटी की। अच्छा, तो आप लोगों ने वीडियो तो सारी देख ली होगी, सारे एरिया का मैंने आप लोगों को विजिट करवाया, एक एक स्ट्रीट दिखाई, प्लॉट के साइजेस के बारे में बताया। डिफरेंट साइजेस हैं उसमें, 2 कनाल के फार्म हाउसेज भी हैं, 4 कनाल के फार्म हाउसेज हैं, कनाल के प्लॉट्स हैं। तो सारे एरिया कवर किया, रास्ते का विजिट किया। आप लोगों ने देख लिया होगा कि G13 से हम लोगों ने स्टार्ट लिया, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट की ट्रैवलिंग है। अच्छा, इसमें जो प्लॉट के प्राइसेस के हवाले से मैं बताता हूं पहले आपको। वो एक इधर प्रोजेक्ट बन रहा है विहारा के नाम से, तो उसकी मतलब काफी तशहीर वगैरह ये चीजें होती रही हैं, तो बहरहाल उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूं। उसकी प्राइस लिस्ट मैं लगा दूंगा। अगर आप लोग अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक अगर इसमें कोई खरीदारी वगैरह करना चाह रहे हो तो हमसे राब्ता कर लें, अगर नहीं करना चाह रहे तो इस बात को आप एक आध से सुन के दूसरे से निकाल लें। इसमें कोई नॉट अ बिग डील, इस तरह कोई इशू नहीं है कि जरूरी है कि आप लोगों ने उसमें बुकिंग करवानी है या नहीं करवानी। बहरहाल उसकी प्राइसेस जो एक कमरे के अपार्टमेंट है, मैं थोड़ी सी तफसील मोटी मोटी आपको जबानी कलामी बता देता हूं, पर बाकी तफसील मेरी वीडियो में आपको दिख रही होगी, तो आप वो भी मतलब बैठ के और तफसील से उसको देख के कि उसमें क्या कोई ये भाम वाली बात तो नहीं है वो रेट लिस्ट के बारे में, उसको तफसीलन पढ़ा करें। हर भी जो भी लिस्ट होती है उसको तफसीलन देखा करें, क्योंकि बोलने में कुछ होता है, दिखने में कुछ होता है, पर सुनने में कुछ होता है। ये सारी चीजों में बहुत फर्क होते हैं। अच्छा, इसका जो सबसे छोटा अपार्टमेंट है, जो आप कह सकते हो कोई स्टूडियो अपार्टमेंट उसको कहते हैं, या पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, तो स्टूडियो अपार्टमेंट वो एक ऐसा होता है कि एक कमरा है, उसमें बस किचन बना हुआ है, उसी के अंदर वॉशरूम है, आपकी टोटल जिंदगी उस एक कमरे के अंदर गुजरेगी। या आप लोग उसको एयरबीएनबी पे इस्तेमाल करना चाह रहे हो, एयरबीएनबी के लिए तैयार करके रेंट आउट करते हो, तो अच्छा एक ऑप्शन उसमें मतलब किराया आपको अच्छा मिल जाएगा, मुनासिब किराया मिल जाएगा। बहरहाल रहना, फैमिली के लिए रहना, तो छोटी फैमिली रह सकती है, 2 बंदे अगर हो तो वो रह सकते हैं। तो उसकी प्राइस टोटल कोई 36 लाख रुपए उसकी टोटल प्राइस है, और 3,60,000 रुपए इस तरह कोई डाउन पेमेंट है, वो आप रेट लिस्ट में देख लीजिएगा। पर उसमें एक चीज और है, और वो ये बताया जाता है कि 36,000 रुपए माहाना किस्त है उसकी, पर उसमें ये जो 3,60,000 रुपए डाउन पेमेंट है ना, तो ये आप 1 महीने करोगे, फिर उसके बाद दूसरे महीने आप लोगों ने कंफर्मेशन फीस देनी है, और फिर
उससे अगले तीसरे महीने में आप लोगों ने एलोकेशन फीस देनी है। तो ये 360 ये कोई 10-11 लाख रुपए तक बात चली जाएगी, 12 लाख तक। तो अक्सर लोग वीडियोस में बताते हैं कि भाई 3,60,000 डाउन पेमेंट कर दें और फ्लैट आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी कोई कहानी नहीं है, और ना आपको कब्जा मिलेगा। ये नहीं है कि लोग अक्सर वीडियोस में बोल देते हैं कि 3,60,000 दे दें और कब्जा ले लें फ्लैट का और उसमें रहना शुरू कर दें और बाकी इंस्टॉलमेंट में 36,000 रुपए महीना देंगे। ये सारी फजूल बातें हैं, बेकार की बातें हैं। बहरहाल इसमें फिर दूसरा साइज है कोई 443 स्क्वायर फीट का, वो 1 बेड उसको बोलते हैं। वो मेरे ख्याल से एक टीवी लाउंज होगा, उसमें एक बेडरूम होगा। मैं खैर उसके मतलब है वो स्केच वगैरह भी लगा दूंगा, जो उसका डिजाइन वगैरह है वो भी अपनी वीडियो में लगा दूंगा, उसको आप गौर से देखिएगा। तो उसकी भी मेरे ख्याल से कोई 44-45 लाख रुपए या 50 लाख रुपए इस तरह कोई प्राइस बनती है। और फिर 2 बेड का है। 2 बेड एक नमूना ही बनाया है इन्होंने, कोई 500 समथिंग स्क्वायर फीट का ये इन्होंने अपार्टमेंट दिया। 500 में 2 बेडरूम और टीवी लाउंज और किचन, ये कैसे मतलब है? 500 फुट में कैसा फ्लैट आएगा? बहरहाल दे दिया है, कुछ कर दिया है। वो भी कोई 61 लाख रुपए का वो अपार्टमेंट बनता है। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से 8 फ्लोर पर मुश्तमिल होंगे। इसके 8 फ्लोर होंगे, नीचे कोई पार्किंग वगैरह भी देंगे। और ये नॉर्मल से बस मतलब वो होंगे, क्योंकि ये प्राइसेस भी कोई अजीब सी ना मानने वाली बातें हैं और किस्तें भी कोई ना मानने वाली, सारी ना मानने वाली बातें हैं। बहरहाल आप लोग मानो ना मानो वो आपकी मर्जी। पहले मैं आपको एक और चंद चीजों के बारे में बता दूं कि हमारे पास अगर एफ सेक्टर्स में अगर आप लोगों का बजट बनता है तो उसमें हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके में मतलब काम चल रहा है तकरीबन 2 से 2.5 साल या 3 साल के, उस पे इंस्टॉलमेंट पे आप लोगों को अपार्टमेंट मिल सकते हैं। क्योंकि एफ सेक्टर्स या न्यू ब्लू एरिया हो गया या आपके F10 सेक्टर हो गया, उसमें स्ट्रक्चर्स वगैरह उसके तैयार खड़े हैं, उसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है और एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। पर इन्वेस्टमेंट आपकी महंगी वाली है। ये नहीं कि वो बड़े बूढ़े कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो एक बार रोने वाली बात है। वो करोड़ों में होते हैं अपार्टमेंट्स। अगर आप लोगों का बजट बनता है और आप लोग अपना अपार्टमेंट बुक करवाना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह एक ऑथेंटिक कंपनी जो होगी, जो भी कंपनियां होंगी, उनके साथ हम आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कराएंगे अपार्टमेंट्स के अंदर। और 2 साल 3 साल के टाइम पे आपने इंस्टॉलमेंट की शक्ल में पेमेंट करनी है और आप लोगों को कब्जा भी मिल जाएगा। और उसका जब तक मतलब है 2-3 साल तक, जब तक ये बिल्डिंग बनेगी, तो ये मैं आपको इन राइटिंग शर्तिया मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर लाइक सपोज आपकी एक प्रॉपर्टी, मैं मिसाल दे रहा हूं, इतने का है नहीं, अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो जब ये बिल्डिंग तैयार होगी होते होते इसकी प्राइस तकरीबन 1,30,35 लाख रुपए तक हो जाएगी। मैं मिसाल दे रहा हूं, प्राइस इतनी है नहीं, ज्यादा है। तो वो इंस्टॉलमेंट पे हमारे पास F10 के सेक्टर में, न्यू ब्लू एरिया के सेक्टर में, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, कॉरपोरेट ऑफिसेज, ये सारी चीजें हमारे पास इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल हैं। अगर तो आप लोग विलिंग हो तो व्हाट्सएप नंबर पे और टेलीफोन भी आप कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। पर ऑफिस टाइमिंग को मलूज़े खातिर रख के सुबह 11 बजे से मगरिब की अजान तक आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे बेशक आप किसी टाइम भी अपना वॉइस नोट छोड़ दें, और कमेंट्स तो आप आधी रात को भी कर ले, या व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भी अगर छोड़े तो आधी रात क्या कि वो सारी रात करते रहे, हमें कोई इशू नहीं होगा। हमने अपने जब भी अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक हम देख के आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। अच्छा, प्लॉट की प्राइसेस के हवाले से अगर हम डिस्कशन करेंगे तो मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया था कि देखें ये G13 और G14 जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के सेक्टर है, अगर आप उसमें भी कोई सेल परचेज के लिए विलिंग हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। उसमें आपको 4 मरले का प्लॉट तकरीबन 2,30,00,000 रुपए से लेके तो 2,70,00,000 रुपए तक प्लॉट मिलेगा 4 मरले का। और आपको मुमताज सिटी के अंदर या गंधारा सिटी के अंदर आपको 5 मरले का जो प्लॉट है
وہ آلموسٹ کوئی 50 لاکھ روپے سے لے کے تو 70-75 لاکھ روپے تک ملے گا 5 مرلے. 25x50 اس کی ڈائمینشن ہوگی. G13 G14 میں جو وہ 4 مرلے ہوگا اور 2.30 سے 2.70 لاکھ روپے تک, اور اس کی ڈائمینشن ہوگی 25x40. تو یہ کافی مطلب ایک 10-15 منٹ کی ڈرائیو کے فاصلے پر. ہاں یہ ہے کہ وہ سیکٹر ہے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا, اور یہ سوسائٹی ہے, پر یہ بھی ایک ایتھینٹک اور اپرووڈ سوسائٹی ہے جس میں آپ کو ٹرانسفر بھی ملے گی سوسائٹی کی طرف سے, اور پلس آپ کو رجسٹری بھی ملے گی. تو یہ چیز آپ لوگ ذہن میں رکھ لو کہ ایک پراپر سوسائٹی ہے, یہ نہیں کہ کوئی فراڈ دھوکہ دہی یا کوئی وہ. پرانی جو چیزیں ہو چکی ہیں وہ ہو چکی ہیں, کیونکہ لوگ پرانے کانٹیسٹ پہ بات کرتے ہیں کہ پہلے ایسا تھا, پہلے ویسا تھا. اب جو ہے یہ سارے معاملات کلیئر ہے, ڈاکومنٹیشن ہر ایک چیز کلیئر ہے. اور ہاں ایک چیز اور بھی میں آپ لوگوں کو انسٹالمنٹ کی مد میں ڈسکس کر لوں کہ ٹاپ سٹی کے اندر اینیکس بلاک ہے. اگر اپنی مرضی منشا کے مطابق, میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لو, یہ لازمی لو, بڑی اچھی چیز ہے, اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بہت بری چیز ہے مت لو. آپ لوگ اپنی کوئریز لے لیں. دیکھیں ہر ایک بندے کا ہر سوسائٹی کے ساتھ اچھا ایکسپیرینس اور بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اب اگر میں مثال کے طور پہ دیکھیں, ہمارا کام ہے, ہم آپ کو آپشنز دیں گے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے. تو جن کا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے, ہم اگر کوئی مطلب نیگیٹو نہیں, جو حقیقت باتیں ہوتی ہے, جو پازیٹو ہوگی پازیٹو بتائیں گے, جو نیگیٹو ہوگی نیگیٹو بتائیں گے. تو ان کی نظر میں ان کا ایکسپیرینس اچھا ہوگا کسی کا, تو اس کو شاید وہ ہماری بات گوارا نہ گزرے, وہ نیگیٹو کے زمرے میں اس کو لے آئے, تو وہ ادھر تنقید شروع کر دیں گے. اچھا ایک چیز ہم پازیٹو بتائیں گے کہ یہ چیز اس میں اچھی ہے, تو ہو سکتا ہے کسی کا ایکسپیرینس بیڈ گزرا ہو اس سوسائٹی کے ساتھ, تو وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں بول دیا, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا. دیکھیں ہم نے زیادہ تر لوگوں کو دیکھنا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا کیا ایکسپیرینس ہے. اگر برا ہے تو برا ہے, کسی بھی سوسائٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, تو اگر زیادہ مطلب اکثریت کی رائے کو دیکھا جائے گا نا, اب یہ تو نہیں کہ 5 بندوں کو فائدہ ہوا ہے اس چیز میں اور 95 بندوں کو نقصان ہوا ہے, تو وہ تو پھر ہم نے تو 95 بندوں کے ایکسپیرینس کے اس کے مطابق بات کرنی ہوگی. یہ تو نہیں کہ ہم 5 بندوں کے حق میں بات کریں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال جس کے فائدے کی بات ہوتی ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں, جس کے نقصان کی بات ہوتی ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. بہرحال ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے اور کس لیے کہہ رہا ہے. تو باقی کسی اور سیکٹر یا سوسائٹی کے حوالے سے آپ لوگوں کی کوئی کوئریز ہو, یا آپ لوگ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہو, تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ بھی بتا سکتے ہیں, اور کمنٹس میں اگر بتائیں گے تو وہ تھوڑا سا ہمارے ریکارڈ میں ایک چیز آ جاتی ہے, تو پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس جگہ کی زیادہ کوئریز آئی ہیں, ریکویسٹ آئی ہے کہ اس جگہ کا وزٹ کروائیں, تو ہم لوگ فوراً سے ادھر اپنی ٹیم کے ساتھ اور کیمرے کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں. تو اب ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.